Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to cover the last two questions of exercise 9.2. Question number 9 states, show that the points M, N, P and Q are the vertices of a parallelogram. Before question number 9, in question number 8 we have also done how to find or how to prove a rectangle. The same goes for parallelogram. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि रेक्टेंगल के कॉर्नर्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जबकि पैरेललोग्राम के कॉर्नर्स 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स दोनों में इक्वल होती हैं, डायगनल्स की लेंथ भी दोनों में इक्वल होती है। सिर्फ फ़र्क है एंगल का जो कि कॉर्नर्स ने बनाना है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, पैरेललोग्राम में नहीं बनता। तो रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए या 90 डिग्री के एंगल को प्रूव करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था। अगर वो इक्वल आ जाए तो इसका मतलब कि एंगल 90 डिग्री का था। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए भी हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारा एंगल पाइथागोरस थ्योरम इक्वल प्रूव हो, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम नहीं है। और अगर इक्वल प्रूव ना हो तो हम कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. So what is a parallelogram whose opposite sides are equal in measurement? The measurement of each corner angle is not 90 degree. That is, length equals to length and breadth equals to breadth. But the Pythagoras theorem should not be proved in this case. We have to first draw the diagonal for it, and the diagonal is the line touching the opposite corners, because diagonal ही actually हमारी hypotenuse की length होगी जो हम h square की जगह put करेंगे. First of all, we will draw the graph. For graph, we have taken first of all -1 and 4 was the point, so we have written -1 and 4. This is the point of M. Then we will draw M. N is the point of -5 and 3. So -5 and 3 is the order pair and the point name is N. Then we have to draw P, which is 1 and -3. So 1 and -3, here is the point. We will write the order pair and the point P. Then the point Q, which is 5 and -2. So 5 and -2 is the point of Q. We have to draw the lines among all these points, M से लेकर N तक, N to P, P to Q and Q to N. So first line N to P, then N to M, M to Q and N to P to Q. That is actually the parallelogram that we have to prove. जो हमें different color की lines नज़र आ रही हैं, that is the parallelogram. इसकी एम क्यू साइड हमारी एन पी साइड के इक्वल होनी चाहिए मेजरमेंट में, और एन एम साइड पी क्यू साइड के इक्वल होनी चाहिए मेजरमेंट में. लेंथ ऑफ अ डायगनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. डायगनल हमने एन क्यू ड्रॉ किया, यानी जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो डायगनल की जो भी मेजरमेंट है वो हमारी हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे एम एन का. mn के डिस्टेंस के लिए we will use the distance formula. डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट की तो it become -5 minus into -1 and 3 minus 4. The answer will be -1 plus 1 whole square and -1 square. -4 square plus into -1 square, it will become 16 plus 1. So under root 17 is the answer of the distance of mn. Second distance find out करेंगे जो कि है p से q तक का. p to q x1 x2 and y1 y2. डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5 -1 होल स्क्वायर प्लस इंटू -2 माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर. दिस विल बिकम 4 स्क्वायर प्लस इंटू -2 प्लस 3 स्क्वायर. 4 square plus 1 square, it will become 16 plus 1. So under root 17 is the answer of PQ as well. So we will say that breadth is equals to breadth. Now we have to prove the lengths, that are they equal or not. The first length is MQ, x1 y1 x2 y2. Using the distance formula, we will put the values 5 into 5 minus into -1 square plus -2 minus 4 whole square. This will become 5 plus 1 square plus -6 square. 6 square minus plus into -6 square, 36 plus 36. So under root 72 is the answer of the first length, that is MQ. Then the second length is NP, x1 y1 x2 y2.
यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस एन पी में 1 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 + 5 होल स्क्वायर प्लस इंटू -6 होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस इंटू -6 स्क्वायर, सेम वही चीज़ आ गई जो हमारी एम क्यू की थी। सो 36 + 36, सो √72 इज द आंसर। तो ये दोनों हमारी किस चीज़ की मेजरमेंट थी? एम क्यू और एन पी, ये लेंथ्स की मेजरमेंट थी और ये दोनों इक्वल आई, सो वी विल राइट दैट द लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ। इसके बाद हमें डायगनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। डायगनल था हमारा एन क्यू, जो कि मैंने ब्लैक लाइन में ग्राफ पे शो किया था। x1 y1 and x2 y2, using the distance formula values put करेंगे। 5 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 5 + 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस इंटू -5 स्क्वायर, दिस विल बिकम 100 + 25, सो द आंसर विल बी 125। 125 का रूट हम नहीं लेंगे। हमारे पास लेंथ के इक्वल है, ब्रेड्थ के इक्वल है और डायगोनल की मेजरमेंट भी फाइंड आउट कर ली है। यहाँ तक हमारी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की सेम चीज़ चलती है। अब जहाँ पे डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का, वो ये है कि रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होता है और पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो ये प्रूव करने के लिए कि क्या एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम की दोनों साइड्स इक्वल आए तो एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी ट्रायंगल रेक्टेंगल होगी। और अगर दोनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम की इक्वल ना आए तो इसका मतलब हमारा एंगल 90 डिग्री का नहीं था और हमारी जो भी शेप है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। So we have to using the Pythagoras theorem, we have put the values। डायगनल की लेंथ यानी 125 मैंने आपसे कहा था कि वो पाइथागोरस की लेंथ होगी। सो 125 रूट इक्वल्स टू √17 स्क्वायर प्लस √72 स्क्वायर, सो दैट विल बिकम 125 equals to 17 plus 72, so 125 is not equal to 89। हमारे पास जो आंसर आया 125 is not equal to the other side which is 89, so at the end we will write, since the given points do not obey the Pythagoras theorem, therefore the coordinates are the vertices of a parallelogram। Question number 10 is, find the length of a diameter of a circle having center at C -36 and passing through the point 1 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सर्कल। सो वी विल ड्रॉ अ सर्कल हैविंग द सेंटर एट सी। तो सेंटर हमारा सी में है जिसकी मेजरमेंट है -3 and 6, सो हमने एक सेंटर ड्रॉ कर लिया, उसकी मेजरमेंट लिख दी। एंड पासिंग थ्रू पी, यानी ये लाइन एक पॉइंट से पास करेगी सर्कल में और वो पी पॉइंट होगा। सो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस पॉइंट जहाँ पे ये पास कर रही है सर्कल को, उसको पी का नाम दिया और साथ उसकी मेजरमेंट लिख दी 1 3। वो लाइन जो सेंटर से लेकर किसी भी कॉर्नर तक जाए एक्चुअली हमारी डायामीटर रेडियस होती है। सो रेडियस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सी पी। सी टू पी की जो भी लेंथ होगी वो हमारा रेडियस होगा। डायामीटर हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायामीटर। सो डायामीटर इज इक्वल्स टू 2r, यानी रेडियस को डबल कर दिया जाए तो हमारे पास डायामीटर की लेंथ आ जाती है। सो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, वी विल ओनली फाइंड the distance of CP and then we will double it to find the diameter। Distance of CP, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला में पुट किया 1 माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर, दैट विल बिकम 1 + 3 स्क्वायर प्लस इंटू -3 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर प्लस इंटू -3 स्क्वायर विल बिकम 16 + 9 अंडर रूट and the answer will be √25, that is equals to 5। डायमीटर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना था? 2r, so 2 into 5, the answer of diameter will become 10। हमें कोई यूनिट गिवन नहीं है इसलिए हम यूनिट पुट नहीं करेंगे। कोई भी यूनिट गिवन होती अगर सेंटर C या P के साथ, तो हम उसे आंसर के साथ ज़रूर लगाते।